नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग की, जिसमें सरकारी प्रवक्ता ने पीएम मोदी के आगामी दौरे पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया के निमंत्रण पर पीएम मोदी 3 और 4 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर ब्रुनेई जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि जिसके बाद वे ब्रुनेई से सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर का दौरा करेंगे। After this press, as also we'll be scheduling a pre-visit briefing by Secretary on this upcoming visit of the Prime Minister. So that was the announcement for me to make. Now I open the floor for questions. Can we start this time this side? Yes. सर, आपने देखा होगा पाकिस्तान ने वाघा अटारी बॉर्डर पर हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी की फोटो लगाई है उस तरफ। इसको लेकर बीएसएफ ने ऑब्जेक्शन रेज किया है, तो क्या डिप्लोमेटिकली भी इस मुद्दे को उठाया गया है? दूसरा, पाकिस्तान ने कल ही बोला है कि एससीओ समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी को इन्वाइट किया गया है। क्या वो इन्विटेशन आपको मिल चुका है? अगर मिल चुका है तो उसको कोई रिस्पॉन्स आपका क्या है? सिद्धांत। Hi sir, Siddhant from Beyond. So we saw the conversation between Prime Minister Modi and the US President Biden, but we also saw discrepancies in the readout in terms of a different readout, absence of certain topics in their readout. So if you can just talk about that. Okay. Abhishek. Hi sir, Abhishek Jha from I'm freelancing now. So my question is regarding this recent reports emerging from Bangladesh, where it has been reported by several institutions backed by government also that Indian agencies and Indian government's actions had flooded part of Bangladesh, and there are apparently some dams which were opened, the gates of dam were opened, that resulted in those flooding situations. Do you have anything to say on that, whether it was deliberate or something natural happened in that? Ghazali? So, day before yesterday, the Jamaat Islami chief in Bangladesh has spoken to the media and said that he is open to, or the party is open to improve ties with India. So, knowing that the party is accused of fomenting anti-India sentiments there, what is the Indian government's stand over it? So let me first take these questions, and then Rishabh and others will come back to you. First of all, regarding the invitation from for SCO, yes, we have received an invitation from Pakistan for the Council Heads of State Government meeting that is to happen. We don't have an update on that for you. We'll let you know what the situation is later. The other question which you asked about involving BSF, etc. I have not seen the report, so let me come back to you on this particular matter. Siddhant, regarding your question, yes, we have seen that there have been some comments in that regard regarding your question. Let me tell you, these claims are uninformed, tendentious and motivated, and betray a total lack of familiarity with the process of how such contacts between leaders are organized and then followed upon. Firstly, press releases issued after conversation between leaders are not like joint statements, where every word is negotiated and mutually agreed upon. तो उधर नई दिल्ली में नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड और जैविक उत्पाद परिषद उत्तराखंड के बीच एमओयू साइन किया गया। इस समझौते के तहत एनसीओएल उत्तराखंड से जैविक उत्पाद खरीदेगा। साथ ही आपको बता दें कि किसानों की आय में बढ़ोतरी को लेकर मदद मिलेगी। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। खंड से यहां पर आए हुए जैविक खेती के साथ जुड़े हुए सभी किसान भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। आज मेरे लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि जब से केंद्र के अंदर शासन की धुरा बदली तब से करीब करीब 10 साल के उपरांत समय हुआ,
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने एक लक्ष्य रखा था कि इस देश की विशाल कृषि योग्य भूमि को जैविक खेती के लिए तैयार करना। और जब ये लक्ष्य हमारे घोषणा पत्र में तैयार हो रहा था, मैं घोषणा पत्र समिति का मेंबर था, कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि ये क्या रखा है भाई, क्यों रखा है। सबको लगता था कि किसी राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में देश की कृषि भूमि को जैविक खेती के लिए उपयुक्त बनाना, इसके अनुकूल बनाना, ये लक्ष्य कैसे हो सकता है। तब वैसे ही चिट चैट थी, कोई इंटरव्यू नहीं था। मैंने कहा था कि राजनीतिक दलों के जो चुनाव घोषणा पत्र होते हैं वो सिर्फ दलों के लिए नहीं होने चाहिए, वो देश के लिए भी होने चाहिए, किसानों के लिए भी होने चाहिए। और आज जैविक खेती का आंदोलन, ऑर्गेनिक खेती का आंदोलन देखते 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 एक महत्वपूर्ण मकाम पर पहुंच चुका है। जैसा बताया गया, दुनिया भर में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक खेती का उपजों का प्रोडक्शन अगर कहीं होता है तो हमारे यहां होता है। जब प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने लक्ष्य रखा कि किसानों की आय 2 गुना करेंगे, इसके कई महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसके आधार पर किसानों की आय 2 गुना करना। उसमें एक बिंदु जैविक कृषि को बढ़ावा देना भी था, क्योंकि दुनिया भर में जो जागरूकता ऑर्गेनिक फूड के लिए आई है, इसका एक बहुत बड़ा वैश्विक बाजार खड़ा हुआ है। और वो वैश्विक बाजार का दोहन कर कर हम भारत का हिस्सा अगर बढ़ाते हैं इसमें, तो स्वाभाविक रूप से जो मुनाफे वाला व्यापार है जैविक उत्पादों का, उसमें हमारे किसान का हिस्सा बढ़ता है, इसकी आय की बढ़ोतरी होती है। इसका एकमात्र उद्देश्य नहीं है। जैविक खेती के साथ ही हमारे समग्र देश के 140 करोड़ नागरिकों का स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है। अब ये लगभग सिद्ध हो गया है कि ढेर सारे रोगों का मूल हमारे पेट में जो फर्टिलाइजर के कारण केमिकल जाता है वो बना है। चाहे बीपी हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे थायराइड हो, अंततोगत्वा कैंसर में परिवर्तित होता है। ढेर सारे रोग हमें मालूम नहीं होता रोज हम क्या खा रहे हैं। इसके अंदर जो केमिकल फर्टिलाइजर की मात्रा बढ़ी है, वो मात्रा हमारे शरीर में रोगों का मूल है। भूमि की गुणवत्ता भी बिगड़ी। पहले सिर्फ भूमि की उर्वरकता कम हुई थी, फिर पंजाब जैसे, हरियाणा जैसे प्रदेश में भूमि सीमेंट जैसी होने लगी है। इसके कारण बाढ़ का खतरा भी बढ़ा है। मेरे खेत में ये 9वां साल है जैविक खेती का प्रयोग करते हैं। अभी एक दिन में 7 इंच बारिश होने के बाद भी खेत से एक बूंद पानी खेत के बाहर नहीं गया है। सारा का सारा पानी जमीन के अंदर उतर गया है। तो पानी का भूस्तर भी ऊपर आता है, जल का स्तर ऊपर आता है, पानी का बचाव होता है। उधर आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अंबेकर ने प्रेस वार्ता की है। साथ ही बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि इस बैठक में संघ प्रेरित 32 संगठनों के 230 राष्ट्रीय पदाधिकारी सम्मिलित होंगे, जबकि 90 केंद्रीय पदाधिकारी कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। Namaste to all.
I am happy to say that Rashtriya Swayansemak Sangh's Akhil Bharatiya Samanvay Baitak, that is all India level coordination Baitak, it is to be held here in Kerala in this campus in Palakkad district from 31st of August and 1st and 2nd September. So in the morning on 31st, 9 o'clock, Baitak will start and it will be concluded at 6 p.m. on 2nd of September. Every year such type of Baitak is conducted. Last year it was conducted in Pune of Maharashtra. All of you are aware, as RSS is engaged from almost 99 years in man making and nation building process. From the initial days, Sangha initiated with the Shakha, and with all the Shakha networks, so many Swayamsevaks, they are working actively in different walks of life. And so, with taking inspiration from RSS, over the year, many RSS inspired organizations are evolved. Now I can say the organization, 32 organizations mainly, they are working nationwide, working in all states. So such 32 organizations and different coordination groups, they are specifically invited here. So this Akhil Bharatiya Samanvay Baitak, in this Akhil Bharatiya Samanvay Baitak, all RSS inspired 32 organizations will be participating. Each organizations with their office bearers, mainly their national president, their organizing secretary and some other office bearers, they are expected. As we have sent the invite to 320 Karyakartas, 230 Karyakartas from Vividha Sanghatan, different organizations, and 90 from directly Sangha working Karyakartas. So total 320 Karyakartas are expected to participate in this Baitak. As I remember, I think for this type of Samanvay Baitak, I think first time in Kerala, as I remember, I will also check the records, but as I remember, it's the first time. So RSS Baitaks, Akhil Bharatiya level Baitaks are, before this, we have conducted in Kerala, but this type of Samanvay Baitak, where all different RSS inspired organizations are involved, I think it is first time in Kerala. उधर लखनऊ में औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन राशि और निवेश के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 32 औद्योगिक इकाइयों को कई करोड़ों की प्रोत्साहन राशि का वितरण और कार्यक्रम और औद्योगिक इकाइयों को लेकर लेटर ऑफ कंफर्ट वितरित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीति के अनुरूप और उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाली कंपनियों को जो है वित्तीय प्रोत्साहन देने की घोषणा शुक्रवार को साकार रूप में की गई। उत्तर प्रदेश में निवेश परियोजनाओं के प्रोत्साहन राशि वितरण और नए निवेश के लिए आज एलओसी जारी करने के लिए आयोजित आज के समारोह में और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबका उत्तर प्रदेश पर विश्वास व्यक्त करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आज आपको 1333 करोड़ रुपए से अधिक के
सरकार के कमिटमेंट के जो पॉलिसी के अंतर्गत सरकार का कमिटमेंट था उसके अनुसार ये इंसेंटिव प्राप्त हो रहा है, इसके लिए आप सबको मैं बधाई भी देता हूं। यह आयोजन केवल इंसेंटिव वितरण से संबंधित मात्र नहीं है, बल्कि शासन के प्रति, शासन के कमिटमेंट के प्रति आपका विश्वास और सुदृढ़ हो, इसके लिए हम लोग आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। यह व्यक्ति जानता है कि यह समारोह है, इसमें इसकी धनराशि सीधे आपके अकाउंट में चली गई होगी, लेकिन उस कमिटमेंट का जो आपने यहां पर एक विश्वास आपके सामने आपको हमने आश्वस्त किया था कि नहीं, हम आपको भी और आपकी पूंजी को भी सुरक्षा प्रदान करेंगे, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे वह निवेश मित्र सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से या फिर एमओयू मॉनिटरिंग की जो प्लेटफॉर्म तैयार हुए हैं या इंसेंटिव वितरण के प्लेटफॉर्म तैयार हुए हैं, यूपी इन्वेस्ट के माध्यम से जिस कार्य पद्धति को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, वह कितना आगे बढ़ा है, या आज यहां पर आपने हमारे कुछ उन सफलतम उद्यमियों के विचारों को सुन करके स्वयं भी महसूस किया होगा, राज्य भर ने इस बात को महसूस किया होगा, और आपकी बात को हम तक पहुंचाने और इन सभी उद्यमियों की आवाज को प्रदेश के युवाओं तक पहुंचाने के लिए जो हमारी मीडिया के प्रतिनिधिगण हैं, इन्होंने भी सुना है। और खास तौर पर इस अवसर पर मैं श्री जेबी पार्क, अध्यक्ष दक्षिण एशिया सैमसंग, श्री राघवपत सिंघानिया, जेके सीमेंट, श्री संदीप घोष, बिरला कॉरपोरेशन, श्री सीपी अग्रवाल जी, अध्यक्ष गायलैंड इस्पात, श्री पवन दावर, सीएफओ एंड चेयरमैन एचसीएल ग्रुप, श्री सेनो अग्रवाल, एमडी अशोक लीलैंड, और श्री विक्रम पोदार, एमडी एंड सीओ कैनपेक इंडिया के माध्यम से जो विचार आपको सुनने को प्राप्त हुआ होगा, वह आज इस नए उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी है। बहनों और भाइयों, यह सच है कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी इस प्रकार का माहौल नहीं था जहां पर हम लोग या उत्तर प्रदेश का निवासी अपने आप को इस बात के लिए कह सकें कि आप भी किसी उद्यमी से कि आप भी यहां पर निवेश करिए। न माहौल था, न सरकार का विजन ही था, करना भी नहीं चाहती थी। उनके अपने संकीर्ण स्वार्थ थे, उनका अपना एक दायरा था। उनके लिए उत्तर प्रदेश भारत के विकास का ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सके, ये उनके विजन में कहीं भी नहीं था। कहीं भी उन लोगों का ये लक्ष्य भी नहीं था। एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करना, इसके लिए चाहे किसी भी हद तक जाकर के हम मशीनरी का दुरुपयोग करें, अराजकता फैलाएं, गुंडागिर्दी करें, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें, किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें, महिला सुरक्षा की स्थिति या फिर झूठे आश्वासन देकर के, यही सब होता था। और यही कारण था
2017 के पहले उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने और खासतौर पर युवाओं के सामने पहचान का संकट था। देश के अंदर जाते थे, कहीं दुनिया के अंदर जाते थे, लोग उसे भरी निगाहों से देखते थे। उधर बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने नई दिल्ली भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है। कांग्रेस और इंडी अलायंस की सरकारें भ्रष्टाचार, व्यभिचार और बलात्कार करने वालों की आका बन चुकी हैं। कांग्रेस जहां जहां जाती है वहां वहां लूट और कंगाली ले आती है। इसका उदाहरण, इसको प्रमाणित करने का काम कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने किया है कि हिमाचल प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के आर्थिक दिवालियेपन का इजहार किया है। श्रीमान राहुल गांधी कहा करते थे कि लोगों के खाते में खटाखट पैसे आएंगे। खटाखट पैसे तो नहीं आए, फटाफट जो है दिवाला जरूर पिट गया। इतना निश्चित है, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में कल सबके सामने आया है कि 9 जो हमारे देश के पहाड़ी राज्य हैं, उन 9 पहाड़ी राज्यों में सबसे अधिक आर्थिक बदहाली की स्थिति में हिमाचल प्रदेश है और कर्ज में इस समय दूसरे पर कैपिटा डेट में, प्रति व्यक्ति कर्ज में हिमाचल प्रदेश इस समय देश का दूसरा सबसे अधिक प्रति व्यक्ति कर्ज वाला राज्य बन चुका है। हिमाचल प्रदेश पर इस समय 87,000 करोड़ रुपयों का कर्ज है और अगले वित्त वर्ष से पहले ही यह कर्ज का आंकड़ा 1 लाख करोड़ की सीमा को पार कर जाएगा। हिमाचल प्रदेश का सालाना बजट 58,444 करोड़ रुपयों का है और उसमें सिर्फ वेतन, पेंशन और पुराना कर्ज चुकाने में प्रतिवर्ष 42,079 करोड़ रुपए चले जा रहे हैं। और आपको याद होगा, इसी हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करके चुनाव जीता गया था। आज दिन तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। ये अलग बात है कि केंद्र सरकार ने केंद्र के कर्मचारियों के लिए और जो राज्य चाहे उनके लिए यूपीएस स्कीम लागू कर दी है, लेकिन ये ओपीएस लागू करने का साहस किए बिना ही आज उनका। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।